اور خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا منصوبہ کٹھائی میں پڑ گیا۔ سیکریٹریٹ میں تاحال سیکریٹریز تعینات نہ ہو سکے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا عہدہ خالی ہونے سے تعمیراتی کاموں کو بریک لگ چکی ہے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نہ ہونے سے ٹینڈرز اور ورک پرمٹ کے مسائل بھی بڑھنے لگے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع اور 36 تحصیلوں میں صاف پانی اور سیوریج کے منصوبے بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے محسن ملک سے۔ محسن بتائے گا کیا وجہ سامنے آئی ہے منصوبے التوائی کے شکار ہونے پر؟ جی، جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن سیکریٹریٹ کو مکمل آپریشن کرنے کے لیے ابھی بھی شاید پنجاب حکومت سنجیدگی سے غور نہیں کر رہی، جس کے حوالے سے خاص طور پر ڈیولپمنٹ کے یا ترقیاتی کاموں پر اب ایسے لگ رہا ہے جیسے بریک لگی، اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ سیکریٹری ہیں جو کہ ایبسنٹ ہیں، ابھی تک وہ یہاں پر تعینات نہیں ہوئے، یا پھر اپنے ٹرانسفر کے بعد وہ عہدے خالی ہیں، جس میں سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وہ بڑا اہم عہدہ ہے جنہوں نے پورے جنوبی پنجاب میں ایک ترقیاتی جال کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے معاملات کو از خود نوٹس کرنا ہوتا ہے۔ رول آف بزنس کے بعد تمام اختیارات جس طریقے سے سیکریٹریز جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کو ملے ہیں، اب تمام تر کام بھی جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کریں گے۔ جب وہ موجود نہیں ہیں، یعنی کہ سیکریٹری ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ موجود نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے چھوٹے بڑے 100 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو کہ پورے جنوبی پنجاب میں اس وقت رکے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر اگر سیوریج اسکیموں کی بات کی جائے تمام تحصیلوں میں اور تمام اضلاع میں جنوبی پنجاب کے، تو اس وقت وہ انتہائی سست روی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر رحیم یار خان میں ایک بڑا میگا پروجیکٹ جو کہ صاف پانی کا تھا، اسی طریقے سے راجن پور میں تھا، ڈی جی خان میں تھا، وہاڑی، خانے وال اور لودرا کے یہ منصوبے ہیں جو کہ اس وقت سست روی کا شکار ہیں۔ لیاقت علی چٹھا جو کہ پہلے سیکریٹری ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ تھے جنوبی پنجاب، ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا سیکریٹری لیبر پنجاب کے طور پر، تو ان کے عہدے پر 3 ہفتے سے کوئی بھی نہیں آیا، جس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب بھر میں وہ چھوٹے بڑے منصوبے بھی اس وقت بریک لگ گئی ہے انہیں، اور اس کی وجہ حکومت کی طرف سے غیر جی ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ۔ اپنے اپڈیٹ کے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں شہری اولیا میں صحت کے منصوبے حیاتی کام کئی سال سے نامکمل ہے۔ تبدیلی سرکار کا صحت کے میدان میں تبدیلی لانے کا دعویٰ ہوا ہو گیا۔ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی توسیع کا منصوبہ 8 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے۔ بلال بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، صحت کے میدان کی بات کریں تو حکومت کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے کہ صحت کے میدان میں تبدیلی لائی جائے گی، لیکن اگر ملتان کی بات کریں تو کئی اہم منصوبے ہیں جو کہ کئی سال سے منتظر ہیں مکمل ہونے کے، فعال ہونے کے، اور ابھی تک ان کو مکمل نہیں کیا جا سکا۔ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی بات کریں تو 2013 سے یہ منصوبہ ابھی تک مکمل ہونے کا منتظر ہے۔ ابھی تک فنڈز اس کے حوالے سے مکمل طور پر جاری نہیں ہوئے، اور منصوبے پر ابھی بھی ترقیاتی کام جاری ہے۔ تقریباً یہ 2 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا، اور تقریباً 8 سال سے زائد اس منصوبے کو ہو چکے ہیں، اور اس منصوبے کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں جا کر اس منصوبے کو فعال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بات کریں تو یہ بھی وہ ایسا ہاسپٹل ہے جو کہ ملتان کو ملنا تھا، لیکن تقریباً اس کو بھی 9 سال سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ ہو گیا ہے، اور ابھی تک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو فعال نہیں کیا گیا۔ بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 500 سے بیڈ کا یہ زائد کا ہاسپٹل بننا تھا، لیکن وہاں پر صرف سیکٹری ہیلتھ کا آفس ہے، اس کے علاوہ وہاں پر ایک کمرہ بھی مریضوں کے لیے فعال نہیں کیا جا سکا۔ نشتر میں کینسر وارڈ کا منصوبہ بھی کئی سالوں سے 5 سے 7 سال ہو گئے ہیں، منصوبہ ابھی تک منتظر ہے، اس کو مکمل نہیں کیا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی ابھی منصوبے شہر میں مکمل ہونا باقی ہیں، جن کے بارے میں حکومتوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب اور ملتان کے باسیوں کو صحت کی بہترین سہولیات میسر کریں گے، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی اور حکام کی عدم توجہی کے باعث جی ٹھیک ہے ملتان، بہت شکریہ۔ ملتان کے متعدد ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہونے سے شہری شکوہ گنا ہے کے لیے بڑی خواری ہوتی ہے۔ ابھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا کارڈیالوجی کا۔ حکومت پاکستان کو یا حکومت پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ فوری طور پر کام شروع کروایا جائے۔ ملتان میں یہ منصوبہ چل رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا جلد سے مکمل ہونا چاہیے تاکہ مریضوں کے لیے سہولت مل جائے۔ بلڈنگ میں بھائی جلدی تیار ہونی چاہیے، یہ کام جلدی ہونا چاہیے، ادھر رش ہوتا ہے بہت زیادہ۔
रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां पर अरबों रुपए के तरक्याती कामों पर काम जारी है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खैर कहते हैं कि आखिरी फाइनेंशियल साल में भी बहावलपुर के लिए फंड्स पर 85% काम मुकम्मल कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, बहावलपुर ज़िला बहुत इस लिहाज से खुशनसीब है कि यहाँ पर जितने भी फंड आए वो लगाए भी गए और वो नज़र भी आते हैं। बहावलपुर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं मलिक महबूब इलाही खैर साहब। कितने फंड्स लगे और साबका हुकूमतों के कितने मंसूबे थे जो मुकम्मल हुए नहीं हुए, ये सब डिटेल लेते हैं इनसे। 2020-21 में ज़िला बहावलपुर में जो ग्रांट दी गई वो 3.5 अरब रुपए की टोटल ग्रांट थी, जिनमें से 86% काम मुकम्मल किया गया और जो 14% काम जिन फंड्स लैप्स हुए वो कुछ तकनीकी बुनियादों पे के लास्ट मंथ में रिलीज हुए और टेक्निकल बेसिस पे उनको सरेंडर करना पड़ा। तो वही बात है, आप मुझे बता रहे थे कि 15 दिन पहले आए, तो 15 दिन पहले आने वाले फंड्स वापस ही जाने थे, वो दोबारा आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दूसरा ये बताइएगा कि कुछ साबका हुकूमतों के मंसूबे थे जिनमें झांगी वाला रोड है, कांजू चौक से सिविल अस्पताल वाला रोड है, वो लैप्स होने के बाद बंद कर दिए गए थे। तो क्या इस वजह से बंद कर दिए गए कि वो साबका हुकूमत का मंसूबा था या वो शुरू होंगे? नहीं, बिल्कुल इस हुकूमत ने पिछले तमाम जितने भी मंसूबे थे एक कलेक्टिव पॉलिसी के तहत उनको टेकअप कर लिया है, जिसमें से झांगी वाला रोड भी है और उसकी रिपेयर इस साल मंजूरी हो चुकी है उसकी। इसी तरह थैलेसीमिया सेंटर है यहाँ पे, उसको टेकअप कर लिया गया है। बोन मैरो सेंटर है यहाँ पे, इमरजेंसी है बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में, उसमें फंड्स की ग्रांट्स भी हमारे पास आ चुकी हैं और इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू हो जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल का भी है मंसूबा? चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी उसमें शामिल है प्रोजेक्ट। तो ये भी कोई अरबों रुपए के मंसूबे बनते हैं? ये तकरीबन कोई 40% काम पहले मुकम्मल हो चुके थे, अब किसी का 50%, किसी का 30% रिमेनिंग जो स्कोप ऑफ वर्क है वो मुकम्मल किया जाएगा इस साल इंशाल्लाह। जी, अभी आप सुन रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका मलिक महबूब इलाही खैर साहब को, जो कि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट बहावलपुर हैं। बता रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, शुरू में पैसों की कमी थी, फंड्स की कमी थी कि साबका हुकूमतों के काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब तमाम के तमाम मनसूबों को टेकअप भी कर लिया गया और नए मनसूबों के हवाले से बता रहे थे कि जितने भी फंड आए तमाम के तमाम लगा दिए गए बहावलपुर के शहरी। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद डॉट पुल मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। ट्रैफिक फ्लो बेहतर करने के लिए कोई साइन बोर्ड ताहाल ना लगाया जा सके। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में डाट पुल का मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। 49 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था, चारों सूबों को ये पुल आकर मिलाता है, लेकिन इसका ताहाल काम मुकम्मल नहीं हो सका है। खसूसी तौर के ऊपर ना ही यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से कोई लाइनें लगाई गई हैं, ना ही कोई साइन बोर्ड लगाए गए हैं। मोनोमेंट भी अभी तक यहाँ पर तैयार नहीं हो सका है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो गुज़िश्ता कई माह से तब्दील हो के ऊपर ये वो यहाँ पर की है। जी, क्या कहना चाहेंगे, ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया, कितना दुश्वारी? यहाँ से गुजरने से बहुत दुश्वारी होती है। ये देखो धूल मट्टी हुई है, जब भी गुजरते हैं तो यहाँ से धूल मट्टी उड़ती है, हमारे मुंह में आती है। और बाकी ना ट्रैफिक का निज़ाम सही है, ट्रैफिक कभी इधर से आ रही है कभी इधर से आ रही है, कोई पता नहीं है कानून का। ये पुल डाट बन रहा है, 1.5 साल तकरीबन हो गए, साल तकरीबन, इसके अंदर कोई निज़ाम नहीं है। कभी इसका मंसूबा किस तरीके कर रहे हैं, किस तरह, ना इनका निज़ाम सही है ना कुछ, बस इसको कभी उखाड़ रहे हैं कभी इसको फिर से लगा रहे हैं। हमें कितना मुश्किलात होती हैं, कब से ये मंसूबा चल रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, समझ नहीं आ रही, ठेकेदार को भी पता नहीं है करना क्या है। वो कभी कुछ बना के तोड़ देते हैं, कभी कुछ बना के, उनको पता ही नहीं है करना क्या है। हमारी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से अपील है कि इस काम को मुकम्मल किया जाए। और मजदूरों को भी पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, वो सुबह रात को कुछ बना के जाते हैं, सुबह उनको कोई हुक्म मिल जाता है, तो तोड़ फोड़ का शिकार बना हुआ है। सारी मट्टी धूल है, रश होता है, कोई समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और खसूसी तौर के ऊपर डाट पुल को खूबसूरत बनाने के लिए वॉल भी तैयार की जा रही थी, लेकिन उसका काम भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। PHA की जानब से 17 मिलियन रुपए के यहाँ पर पौधे लगाने थे, खूबसूरत बनाना था, लेकिन चंद पौधे लगाकर वो भी अपना काम। पुल डाट का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। आशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे रहीम यार खान में, जहाँ पर साबिक हुकूमत का तालीमी मैदान में बड़ा मंसूबा खानपुर कैडेट कॉलेज 4 साल गुजर जाने के बावजूद नामुकम्मल है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। एजुकेशन सेक्टर में पिछली हुकूमत ने एक बड़ा तालीमी मंसूबा रहीम यार खान को दिया गया था। खानपुर कैडेट कॉलेज बनाया जा रहा था 2017 में, इसकी तामीर का काम शुरू हुआ। 60 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था, मगर अब
4 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और ये फंक्शनल नहीं हो सका। अभी तक आखिरी मराहिल में है। कैडेट कॉलेज का ये मनसूबा अवाम के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए ये एक अच्छा तालीमी मनसूबा था जो आला मियारी तालीम के हवाले से, कैडेट की तालीम के हवाले से बहुत अच्छा मनसूबा तस्वर किया जा रहा था और बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा था। 2017 में इसका काम शुरू किया गया, इसको 1 साल का हदफ रखा गया कि 1 साल में इसको मुकम्मल किया जाएगा, मगर 1 साल में यह मनसूबा तो मुकम्मल नहीं हो सका। 4 साल मज़ीद हो गए, यानी कि 4 साल हो चुके इस मनसूबे की मराहिल को मुकम्मल होते हुए यह मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। फंड्स की तखीर का शिकार होता रहा, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसके फंड्स रुके गए, फिर फंड्स का इजराब भी कर दिया गया। अब भी यह मनसूबा तकमील के आखिर मराहिल में है, फिनिशिंग की जा रही है, मगर यह मनसूबा जो अवाम के, यहाँ के बच्चों के लिए बड़ा अहम था, इसको तकमील ना होने की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बच्चों के मंसूबे थे कि वो कैडेट कॉलेज में अपनी तालीम का। शुक्रिया, आपने से अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियां वाली साहब का दौरा हुकूमत में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों को मौजूदा हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। साबिका दौरे हुकूमत में जहाज चौक तक सिराब वाला रोड का काम 2017 में शुरू हुआ था। 10 करोड़ की लागत से 2 साल में मंसूबा मुकम्मल होना था। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा क्या वजह सामने आई है इल्तवा की? जी बिल्कुल, साबका दौरे हुकूमत में मियां वाली में कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए जिनको मौजूदा हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। इसको अगर इंतकामी कार्रवाई कहा जाए तो ये भी गलत न होगा, क्योंकि मियां वाली में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वो जहाज चौक तक सुराब वाला रोड जो है 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना था। 2 करोड़ रुपए इसके फंड जारी हुए 2017 में। 1 करोड़ रुपए जो है महकमा ज़राअत को दिए गए, जिसने दरख्त काटे, और उसमें दूसरा फेस्को ने जो है पोल साइड पे किए और 1 करोड़ रुपए की लागत से इस पे रोड़ा डाला गया। लेकिन उसके बाद एडीपी स्कीम में 5 लाख रुपए, इस मौजूदा साल एडीपी स्कीम में 5 लाख रुपए इस रोड के लिए फंड जारी किए गए। रोड होना चाहिए और सहूलत मिलनी चाहिए। हर हुकूमत ने जो आया हुकूमत उसने अपने पेट भरा, अवाम मर जाए, फिट जाए, गायब हो जाए, जो मर्जी थी। अवाम ने आके पिट्टा खोई की थी, वो बदल गया, दूसरा आ गया। 8 सूबे ने 4 सूबे रह गए, अजी भी इसमें खामने थे हुकूमत शुरू हुए, लेकिन मुकना ये भी नहीं क़यामत तक है निरमेता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, आप क्या कहेंगे? साबका दौरे हुकूमत में जो शुरू किया गया तो मौजूदा हुकूमत इसको नजरअंदाज करे, क्या कहेंगे सवाल? तो से आप करो आसान सड़क बननी चाहिए, गाय सड़क कोई नहीं, ऐसा को झगड़ाले शहर में कोई हाल को दिए नित एतलान तीन कोई इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि ये सबसे अहमियत की हामिल रोड है। इसी रोड से गुजर कर ट्रैफिक जो है इस्लामाबाद जाती है और दीगर कई शहरों को भी आने जाने वाली ट्रैफिक जो है इस रोड को इस्तेमाल करती है। मुतअद्दिद इस पे एक्सीडेंट हो चुके हैं। जी ठीक है, अभी अख्तर आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ शहर की अहम शाहराहों की हालत इज़ार खराब है। अलीपुर रोड, तलेरी बार रोड, थर्मल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि बजट में ऐलान के बावजूद इन सड़कों की तामीर का काम शुरू नहीं हो सका। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। बिल्कुल, अरसा दराज गुजरने के बावजूद मुजफ्फरगढ़ शहर की सड़कों की हालत इज़ार जो है वो नहीं ठीक हो सकी, जिस वजह से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना, खासकर थर्मल रोड जो है उसकी वजह से शहरी खासे परेशानी का शिकार हैं। अलीपुर रोड भी नहीं बन सका। शहरियों से इस हवाले से बात करते हैं। मुझे ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है मुजफ्फरगढ़ की सड़कों की? मुजफ्फरगढ़ में सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि खास तौर पे जब बच्चों को स्कूल की छुट्टी होती है या बच्चों को ले जाने के लिए होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मसाइल का, जो वालिदैन होते हैं उनके लिए बहुत से मसाइल का सामना होता है। खास तौर पर अलीपुर रोड, तलेरी रोड और थर्मल रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से बच्चों का गुजरना, ट्रैफिक का गुजरना और आम पब्लिक का गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेरी नेशनल हाईवे वाले से गुजारिश है कि खुदारा इन सड़कों की मरम्मत की जाए, इन्हें तरतीब दी जाए, इन्हें सही किया जाए, ताकि जो गुजरने वाले हमारी बच्चियाँ हैं जो स्कूलों में जाती हैं या दूसरे मुसाफिर जाते हैं उनके लिए कोई सहूलत पैदा की जाए। शहरी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार है और यही मुतालबा करते नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहरियों लेके मरकजी चौक नंबर 9 चुंगी के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। चुंगी पर वासा के डिस्पोजल स्टेशन की बदबू का मसला हल हो गया। वासा बदबू के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम को लॉन्च करेगा। वासा की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉल कर दिया गया है। आपको बताते चले, ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के फॉल होने से खुशगवार माहौल मुयसर होगा। अपडेट करते चले आपको शहरियों लेके मरकजी चौक 9 नंबर चुंगी के हवाले से
अच्छी खबर सामने आई है। चुंगी पर वासा के डिस्पोजल स्टेशन की बदबू का मसला हल हो चुका है। वासा बदबू के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम को लॉन्च करेगा। वासा की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉल किया गया है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। अभी आपको बताएं, आगे दौड़ पीछे छोड़ तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिका दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करना भूल गई। साबिका दौरे हुकूमत में शुरू किए जाने वाले बेशतर तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार। मुल्तान में मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मंसूबा 3 साल से ताखीर का शिकार है। मजीद बात करेंगे गोहर इमाम से। गोहर, क्या वजह सामने आई है ताखीर की? जी बिल्कुल साबिका हुकूमत के बहुत से तरक्याती मंसूबे मौजूदा हुकूमत 3 साल गुजरने के बावजूद भी जो उन्हें मुकम्मल करने से कासिर दिखाई देती है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो मुल्तान समेत जनूब पंजाब में साबिका दौरे हुकूमत में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के तरीके इंसाफ के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मंसूबे हैं बड़े मंसूबे इल्तवा का शिकार दिखाई देते हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए मुल्तान शहर के सेंटर में एक मंसूबा शुरू किया गया था मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हवाले से साबिका दौरे हुकूमत में। इस मंसूबे के तहत जो एक बड़ी बिल्डिंग जो थी 6 मंजिला वो तैयार की गई और इसमें सिर्फ मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड जारी करने थे और मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो बिल्डिंग है उसके काम को थोड़ा सा मुकम्मल करना था और उसे बहाल करना था। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी जो मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो बिल्डिंग है वो तैयार नहीं हो सकी है। अब इस बिल्डिंग को जनूब पंजाब सेक्रेटेरिएट ने टेक ओवर कर लिया है। अब इसके कुछ पोर्शन जो है 3 पोर्शन वो जनूब पंजाब सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करेगा और जो 2 पोर्शन है वो मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाले इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी भी ये मंसूबा ताखीर का शिकार है। इसके साथ साथ जो बड़े रोड्स के मंसूबों की बात की जाए, मुल्तान शहर में साबिका दौरे हुकूमत में रोड्स के मंसूबों के हवाले से इनिशिएटिव लिया गया। इनमें हेड डुमरा था, अस्करी बाईपास रोड का एक इनिशिएटिव था। साबिका दौरे हुकूमत में बातें हुई, इसके ऊपर काम भी किया गया, पेपर वर्क भी मुकम्मल किया गया। ठीक है गौहर, आपने अपडेट किया। साबिका हुकूमत में शुरू किए जाने वाले बेशतर तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार है। शहरियों का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। अब ये तो नहीं कि पिछली हुकूमत ने कर्जा भी तो काफी लिया है ना, महंगाई तो है, हम भी चीज की कहते हैं कि महंगाई है, लेकिन उसके लिए है थोड़ा वक्त लगेगा फिर ही जा कुछ होगा। जो रोड बनता है कुछ दिनों बाद वही तोड़ के दोबारा सेवरेज डाल रही होती है उधर, उसे फिर दोबारा फिर पैसे जाया हो रहे हैं। इतनी महंगाई है, लोग परेशान है। जो कह रहे थे ना कि तब्दीली आएगी, वही लोग अब कह रहे हैं कि बस अब सड़कें बना ही रहे, आगे महंगाई करते जा रहे हैं। अवाम क्या करे, बेचारे गरीब कहाँ जाए, बेचारे गरीब बैठे फिर भी खा रहे हैं, फिर भी मजबूरी है उनकी, फिर भी सड़कें बनेंगे सब कुछ चले होगा, फिर लोग तंग हो रहे हैं आने जाने के लिए। सब नगर में फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मेडिकल कॉलेज की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। 2013 में शुरू होने वाला मंसूबा 2021 में भी मुकम्मल ना हो सका। मजीद बात करेंगे कासिम शेख से। जी कासिम। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में शुरू होने वाला अब जिला बहावलनगर की सबसे बड़ा जो है वो मंसूबा मेडिकल कॉलेज की तामीर का जो मंसूबा है वो मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जो है वो इस पे फंड जरूर लगे, लेकिन जो है वो 70% से ज्यादा मुकम्मल होने के बावजूद भी जो है ये मंसूबा नामुकम्मल है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ शहरों से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, ये मंसूबा जो वो कब शुरू हुआ था? जी बिल्कुल, ये मंसूबा नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में शुरू हुआ था, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई है तो ये मंसूबा रुक गया है। कुछ काम हुआ है इनकी हुकूमत में, लेकिन ज़्यादा काम 70% काम नवाज शरीफ ने खुद किया है, उसके दौर हुकूमत में हुआ है, लेकिन अब आगे ये काम रुक गया है। फंड दिए थे लेकिन वो थोड़े बहुत आए थे, लेकिन अब रुक गए फंड। हमारी गुजारिश है कि हुकूमत से कि जल्द अज जल्द काम शुरू करवाया जाए, क्योंकि भावनगर की तरक्की इसमें है। इर्द गिर्द के लोग जैसा कि पाक बतन, चिश्तियाँ, साहिवाल, वहाँ से लोग पढ़ने आते हैं, यहाँ पर आएंगे। अगर इसका ये हो गया तो इसमें भावनगर की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की है। हमारी गुजारिश है हुकूमत से वो जल्द अज जल्द इसका काम शुरू करवाए ताकि भावनगर में अच्छा काम हो सके। कि बिल्कुल इस मंसूबे पर जल्द से जल्द काम शुरू कराएं। एक और शहरी मौजूद है, आप बताइए कि बेटा आप क्या कहते हैं? जी मैं भी ये कहता हूँ कि गुज़श्ता हुकूमत में मतलब काम शुरू हुआ था, ऐसे ये 70% काम हुआ, ये 30% रुका हुआ है। इस हुकूमत ने कुछ फंड दिए थे, ये मतलब थोड़े से फंड दिए थे। हुकूमत से गुजारिश है कि 30% काम रह गया वो ये हुकूमत कर दे, ताकि बिल्कुल 30% जो काम रह गया है वो भी मौजूदा हुकूमत पूरा करे, ताकि भावनगर की जो जिले का सबसे बड़ा जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खानेवाल में गुज़श्ता हुकूमत के कई मंसूबे ज़ेर इल्तवा है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने की वजह से अकेडमी और पार्क की तामीर मुकम्मल न हो सकी। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, अपडेट कीजिएगा।
हुकूमत में खानेवाल के में मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए गए जिनका संग बुनियाद रखा गया, लेकिन वो आज तक वो मनसूबे मुकम्मल नहीं हुए, जिनमें एक राव अब्दुल गफ़ार पार्क है जिस जगह में मौजूद हैं। यहाँ पर संग बुनियाद रखा गया था। उसके साथ अमीन टाउन में लेडीज़ पार्क का संग बुनियाद रखा गया था। क्रिकेट अकेडमी की तामीर शुरू की गई थी। उसके साथ फुटबॉल अकेडमी की तामीर शुरू की गई थी। तमाम मनसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके। इस पर हम बात कर रहे थे, हमारे से शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि जिस जगह पर हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर राव अब्दुल गफ़ार पार्क का संग बुनियाद रखा गया था, तो क्या सूरत हाल है, क्यों मुकम्मल नहीं हो पाया? गुज़श्ता हुकूमत ने जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंसूबा दिया था। हम बड़े खुश थे कि हम यहाँ पे ना एक पार्क बना रहे हैं जी, कि बहुत बड़ा इफ्तिताह हुआ था। उस वक्त के चेयरमैन मसूद मजीद साहब, MP निशात खान डार साहब ने इसका इफ्तिताह किया, यहाँ पे तख्ती लगाई और बहुत लोगों को बड़े हम खुशी की लहर दौड़ी थी कि हमारे बच्चे इस पार्क में खेलेंगे और हम बड़ा जो है ना सैर व तफरी करेंगे। मगर हमें वो सैर व तफरी तो न मैसर हो सकी, यहाँ गंदगी के ढेर जरूर हमें मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, उस पार्क की जगह पे गंदगी के ढेर जरूर मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, संग बुनियाद रखा गया था, मुकम्मल नहीं हुआ? ये जी हमारे सामने इत्तिफाक हुआ था। मसूद खां भी शामिल थे, निशात खां भी शामिल थे। बहुत अच्छी तरह इफ्तिताह हुआ था, बहुत अच्छी रौनक थी। इस राव अब्दुल गफ़ार के नाम पे ये पार्क रखा गया था। है ये मंसूबा बहुत बड़ा था, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करा। ये आप गंदगी का ढेर नजर, बिल्कुल यहाँ पे गंदगी का ढेर नजर आ रहा है और खासे खुश थे उस वक्त जब संग बुनियाद रखा गया था। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बिहाड़ी में दम शुरू होने वाले मॉडल बाजार मनसूबा तजावुजात की नजर हो गया। मजीद बात करेंगे हाफिज वाले मोहम्मद से। हाफिज बताइएगा। साबका हुकूमत ने बिहाड़ी के शहरियों के लिए मॉडल बाजार की सूरत में एक खूबसूरत तोहफा दिया था, जो कि ये तब्दीली सरकार इसको ना तो चला सकी, हुकूमत और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से ये वीरान दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहरी, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, ये क्या कहेंगे कि ये तब्दीली सरकार ने इसको क्यों नहीं चलाया अब तक? 1 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया था। सर ये साबका हुकूमत ने बनाया था और उस वक्त चल रहा था बहुत अच्छा, और जो अब मौजूदा हुकूमत चल रही है तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इधर तो बहुत हालात ख़राब हैं, 99 दुकानें हैं तकरीबन, कोई इनकी पोजीशन नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, आप देख सकते हैं सामने। तो 3-4 मरतबा पहले भी ऐसे कह चुके हैं, लेकिन कोई नहीं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि अब भी होगा, तो फिर भी हम पुकारते रहेंगे। तो जी बिल्कुल, शहरियों की तरफ से जो है वो इस वक्त नाउमीदी जाहिर की जा रही है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगता नहीं कि ये हुकूमत और इंतजामिया जो है मॉडल बाजार को फाल कर सके। ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत के अंदर जो है साबका हुकूमत ने इसे बनाया था, जिसका माहाना खर्च जो है 3 से 4 लाख रुपए। लेकिन जो दुकानें जो है वो रेंट पे ना होने की वजह से इसका ये जो है खजाने के ऊपर बोझ है। मॉडल बाजार इंतजामिया इस हवाले से कोशिश करती तो दिखाई दे रही है, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया जो है। बहुत शुक्रिया आपने। लिया में महंगाई के सताए मजदूरों का एहतजाज। बढ़ती महंगाई से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि चीनी आटा समेत अशिया खुरानोश की तमाम अशिया महंगी हो चुकी हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद से फराज से। जाहिद बताइएगा क्या कहना है मजदूरों का? जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से जहां तमाम तबका जो परेशान दिखाई देते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा मुतासर तबका है वो मजदूर तबका है। मजदूर जो उसकी उजरत बढ़ी नहीं, उसकी मजदूरी में इजाफा हुआ नहीं और आए रोज महंगाई की वजह से मजदूर जो उनकी परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। कुछ मजदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वजह से महंगाई की क्या सूरत हाल है? आटा चीनी की क्या मिलते हैं? सर जी आटा बहुत महंगा है पिया, कारोबार ही नहीं कहना। जदा से इमरान खान की हुकूमत आई है ना सर जी, ई बेड़ा गर्क कर दिता सारी आवाम का। कै वेले सारी मजदूरी लगती है, कै वेले मजदूरी सारी नहीं लगती। आटा दे गिनो, चीनी दे गिनो, दाल दे गिनो, सब्जी दे गिनो सर जी। एक टाइम से रोटी का इंतजाम नहीं थी ना सर जी। रोटी का मजदूर तक कितना वजे सर जी? 110 रुपए किलो चीनी थी गई सर जी। 110 रुपए किलो चीनी थी गई सर जी। 1100-1200 रुपए 20 किलो की आटा है सर जी। मजदूरी इतनी महंगी हो गई सर जी, बस जदा दा इमरान खान की हुकूमत है सर जी, बेड़ा गर्क कर देते सर जी, आवाम का बेड़ा गर्क कर देते सर जी। शदीद परेशान है भजन, तुसा क्या क्या हालात हैं जी? ये जेडी हुकूमत आई है ना, ये हुकूमत निकाम हुकूमत है जो भाई गरीब के हक च कोई नहीं। क्यों गरीब भूख मरदा पे, ये महंगाई को उत्ता चाड़ी आंदन। चीनी है, आटा है, कोई शायद सौदा है, सब्जी है, घ्यू है और 300-350 रुपए किलो घ्यू है। असा किथा दिहाड़ी करूं या घर के खर्चे पूरे करूं? दिहाड़ी करना आने तो दिहाड़ी नहीं लगती। असा तो तंग है, जलील है।
जी तमाम खुर्दनोश की अशिया महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से मजदूर तबका भी परेशान है। मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी उजरत में इजाफा करने का। मजदूर तबका परेशान है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। जहांगीर तरीन और अली तरीन लोधरा पहुंच गए। जहांगीर तरीन लोधरा कहर पका और दुनिया भर का दौरा करेंगे। जहांगीर तरीन मुख्तलिफ शख्सियात की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। जहांगीर तरीन पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। अली तरीन डिग्री कॉलेज बॉयज और गर्ल्स दुनियापुर में कंप्यूटर लैब्स का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको अपडेट करते चले कि जहांगीर तरीन और अली तरीन लोधरा पहुंच चुके हैं। जहांगीर तरीन लोधरा कहर पक्का और दुनियापुर का दौरा भी करेंगे, जबकि जहांगीर तरीन मुख्तलिफ शख्सियात की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। जहांगीर तरीन पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे, जबकि अली तरीन डिग्री कॉलेज बॉयज और गर्ल्स दुनियापुर में कंप्यूटर लैब्स का इफ्तिताह करेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजाम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कोटचुट्ठा में अहम मीटिंग हुई। मिलाद कमेटी के अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद सलीम से। मोहम्मद सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर कोटचुट्ठा में मरकजी मिलाद कमेटी की अहम मीटिंग हुई है, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली बुद्ध हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा इंतजाम के बारे में क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में सीरत कॉन्फ्रेंसेस और नात और क़िरात के जो कम्पटिशन्स हैं वो रियासती सतह पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। जिस सिलसिले में आज हमने मिलाद कमेटी के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसमें हुकूमत की जानिब से जो ये इक़दाम किए जा रहे हैं वो भी इनको बताया गया और मिलाद कमेटी की जानिब से जो मसाइल दरपेश हैं उनको भी हमने सुना। इंशाअल्लाह ताला जो मिलाद के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं वो हम शायाना शान तरीके से मनाएंगे और मिलाद कमेटी की जानिब से जो मसले मसाइल पेश किए गए इंशाअल्लाह तो उसको भी हम बर वक्त। जी बिल्कुल, सरकारी सतह पर भी मिलादुन्नबी जो है शायाना शान तरीके से मनाई जाएगी। मरकजी मिलाद कमेटी के सदर काजी जुल्फ़िकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताइएगा किस तरह से तैयारी की जा रही है। भरपूर अंदाज से झंडे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, घरों पर लाइटिंग हो रही है, मुख्तलिफ इमारतों में मज़ारात को सजाया जा रहा है, रोड्स को सजाया जा रहा है। इस हवाले से भरपूर अंदाज से हमारे तहसील कोटचुट्ठा में 17 सब बड़े जुलूस, मरकजी जुलूस होते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के, और 61 छोटे जुलूस होते हैं मुख्तलिफ मकामात पर। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मिलाद कमेटी भरपूर अंदाज से अपनी तवानाइयाँ खर्च कर रही है, क्योंकि हम तो एक मुस्तफ़ा का नाम है, नाम खुदा के बाद, और जिस कदर भी नाम है सब मुस्तफ़ा के बाद दुनिया में एहतराम के। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल जो है सरकारी। जी ठीक है सलीम, आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब के काश्तकार हो जाए होशियार। माहिरीन ने गंदम की काश्त से कबल काश्तकारों को जमीन का तज्जिया करवाना लाजमी करार दे दिया। मजीद बात करेंगे अली रियासी। अली, बताइएगा। जनूबी पंजाब के अगर हवाले से बात की जाए तो जनूबी पंजाब में जो हमारा अहम जो सबसे चीज़ है वो हमारी फसलें हैं, और फसलों का जो ताल्लुक है वो ज़मीन और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी से है। कहा यह जाता है दादा शुमार के मुताबिक कि पाकिस्तान में जो ज़मीन का एक बड़ा मसला है वो कलराटी और ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ ना होना है वो भी है, जिसमें जो ज़मीन के अंदर जो नामियाती मादे हैं वो भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब चूँकि जो फसलों के से बात की जाए तो कपास की जो चुनाई मुकम्मल होने को हो चुकी है, और आने वाले दिनों में जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन जिसमें मुल्तान, भावलपुर का जिक्र किया जाए तो गंदम की काश होगी। यहाँ पर मेरे साथ वैसे डॉक्टर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड की शजरकारी मुहिम 4,500 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए। मजीद बात करें अमजद मलिक से। अमजद, बताएगा शजरकारी मुहिम के हवाले से। जी बिल्कुल, ग्रीन पाकिस्तान के तहत मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में पहली बार जो है मुल्तान इंडस्ट्रियल बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है 4,500 से ज्यादा जो है दरख्त लगाए गए हैं, और इनका जो टारगेट है 6,000 से ज्यादा जो है वो दरख्त लगाने हैं। इस वक्त जाहिर सी बात है जब दरख्त लगाए जा रहे हैं तो वो बड़े होंगे तो सायादार भी होंगे, ऑक्सीजन भी मिलेगी। ये पहली बार जो इनिशिएटिव है वो मुल्तान इंडस्ट्रियल बोर्ड की जानिब से ये लिया गया है। इस हवाले से हम जानेंगे कि आगे का इनका क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नाइब चेयरमैन है हमारे मुल्तान इंडस्ट्रियल बोर्ड के मियां राशिद इकबाल साहब। वजीर आजम इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस साल इंडस्ट्रियल स्टेट ने भरपूर हिस्सा लिया है शजरकारी मुहिम में, और इसका सारा क्रेडिट इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के सदर मियां हुसैन फजल साहब को जाता है, जिनकी ज़ाती काविशों की वजह से हमने इस साल इंडस्ट्रियल स्टेट में 6,000 पौधे लगाने का बंदोबस्त किया है, जिसमें से 4,500 पौधे हम ऑलरेडी
तमाम ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लगा चुके हैं और इस महीने के आखिर तक हमें बड़ी उम्मीद है कि हम 6000 पौधा मुकम्मल कर लेंगे या फिर इससे भी ऊपर चले जाएंगे। 6000 से ज्यादा जो है इस महीने के अंदर दरख्त जो है वो कंप्लीट है और अगले साल भी ये टारगेट जो है इस तरह अचीव किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद, आपने अपडेट किया। भक्कर में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर हामिद महमूद मलही ने खान से रोड ग्रीन बेल्ट का मुआयना किया और पौधा लगाया। मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। असलम बताइएगा। बिल्कुल बखर में डिप्टी कमिश्नर हामिद महमूद मल्ही ने यहाँ पे पौधा लगाया है और उनका क्या कहना है उनसे हम बात करवाते हैं कि शजरकारी मुहिम के हवाले से भी और इससे कबल जो मानसून के हवाले से भी पौधे लगाए गए थे और इसके अलावा जो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बखर साबका ने भी यहाँ पे पौधे लगवाए थे और इसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो सुनामी प्रोग्राम शुरू किया गया था उनकी किस तरह हिफाजत की जा रही है और किस तरह इन पौधों की देखभाल की जाएगी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस बारे में मैं अर्ज कर दूं कि बेसिकली तो ये विजन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का है इस खित्ते में, और बल्कि आप देखें पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट वही लेके आए थे कि हम इस जो रहने वाली हमारी दुनिया है, जो अल्लाह ताला ने हमारे हवाले जो हवा की जो कुदरती चीज़ें हमारे हवाले की, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर चुके हैं। तो उनका ख्याल था, जो कि सही आज तक साबित हुआ है, कि हम दरख्त लगाएंगे तो हम अपने बच्चों को साफ हवा दे सकेंगे, पानी हम दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, हवा के लिए हमें दरख्त चाहिए। तो उनकी विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया और आज मैं देख रहा हूँ कि बखर जैसे सेमी डेजर्ट और एरिड जोन में आप लोगों ने एक तहरीक बना दी है और मुझसे पहले रहने वाले अफसरों ने, और जिनमें से कुछ अभी भी यहाँ हैं, उन्होंने यहाँ अच्छे खासे दरख्त लगाए हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि इसको आगे लेके जाऊँ। और इसके साथ साथ दरख्त लगाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हम इनकी ट्रैकिंग रखें कि कितने दरख्त लगे थे और कितने वो बढ़ रहे हैं और वहाँ पे हैं। तो रेशो जी ठीक है असलम बलोच, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।